Students, how are you all? I hope you all people are doing good. Students, I have already recorded a lesson in your history subject, okay, but none of you have given me any response yet, okay. So I hope that you people are learning this subject also. So I have already discussed the first chapter, that is how, when, and where. Okay, now we are at the middle of this chapter, and today we will be discussing the what is colonial. Okay, what is colonial? Okay, and if you have not watched the videos, if you have not understood the subject yet, so better you just watch the previous videos that I have already uploaded in our school's YouTube channel, and the links are given in your group itself. Okay, and today also I'll be giving you the link. You just follow the link, subscribe the channel, and you will be notified when someone uh, sends or record any upload any video. Okay, so we have been discussing the this historians of that British historians. They have categorized or periodized our history in three different periods. First one was the ancient, second one was the medieval, and third one was the modern. Okay, and this period, most of the historians, they just consider the modern age or a modern history as a colonial. What is that? This term you have to understand today, because we will be discussing this colonial. Okay, many historians therefore refer to the period as the colonial. Which period? The modern uh, history. Now, what is colonial? Colonial, it's a kind of a rule. You just understand it. It is a kind of a rule. एक किस्म का एक नियम होता है. किस चीज का नियम? It's a rule of acquiring the economic and the social economic सिस्टम ऑफ एनी कंट्री. ओके, जब क्या होता है बेटा कि जब कोई जो बड़ा देश होता है, वो किसी छोटे देश के सिस्टम को, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किसी उनके जो सिस्टम होता है बना हुआ, उसको एक्वायर कर लेते हैं और अपना सिस्टम उस पर अप्लाई करते हैं, तो उसी उसी को कॉलोनियल रूल कहते हैं. ठीक है, तो जैसे जो इंडिया का अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशंस थे. ठीक है, जैसे कि ये जो ब्रिटिश हिस्टोरियन मानते हैं कि पहले जो है ब्रिटिश रूल से पहले जो इंडियन हिस्ट्री थी, या इंडियन के जो रूलर्स थे, वो सब क्या थे? वो अंधविश्वासी थे. वहाँ पे जातिवाद ज़्यादा होता था. ठीक है, और जब ब्रिटिश लोगों ने जो है हमारा जो सिस्टम है, हमारा रूलिंग सिस्टम जो है वो एक्वायर किया, तभी जाके जो है हमारा जो कल्चर है या सोसाइटी है या सोशल सिस्टम है वो सुधरा है. ऐसा हिस्टोरिकल जो उस टाइम के थे उनका मानना था. अब बात आती है कि व्हाट इज कॉलोनियल. इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे ऑफ अ ब्रिटिश came to conquer the country and establish their rule, subjugating local nawabs and the Rajas. You will see how they established control over the economy and the society, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at the low prices. Just hold on. Okay. Bought the goods they wanted at the low prices, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that they came about as a consequence. You will also come to know about the changes British rule brought about in the values and the tastes, customs and the practices. When the
subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes. We refer to the process as the colonization. Okay, अब देखिए कि colonization था, इसको colonialism भी बोलते हैं या colonial जो है ये है क्या चीज. ओके, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो एक किस्म का रूल होता है, इट्स अ रूल ऑफ acquiring the, it's a process of acquiring the social and economic system of any country. Okay, अब आप कह रहे कि हम इस बुक में जो है वो ये पढ़ेंगे कि जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारे देश को हमारे देश के जो नवाब, क्योंकि हमारे देश में जो शासन करते थे वो नवाब और राजा हुआ करते थे, तो उनके जो है उनको अक्वायर करके, उन पर जीत हासिल करके, किसी न किसी तरीके से उन पर जीत हासिल करके उन्होंने जो है, अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया, अपना रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप कर दिए. ठीक है, और किस तरह से उन्होंने जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम थी और सोशल सिस्टम था उस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया. ठीक है, और वो जो थे अपने जो सारे खर्चे थे, कौन, ब्रिटिशर्स थे, वो अपने सारे खर्चों को उनका सेटलमेंट करने के लिए वो क्या करते थे कि रेवेन्यू मीन्स राजस्व, कर वसूलते थे और अपनी जरूरतें की जो चीजें होती थी उनको वो बहुत सस्ती कीमत पे हमसे खरीदा करते थे, और जो निर्यात के लिए मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए वो जो है, मतलब यहाँ से बाहर भेजने के लिए वो एक विशेष प्रकार की जो फसल होती थी, अच्छी जो गुड क्रॉप्स होती थी, ठीक है, उनकी फसल वो जो है लोकल किसानों से करवाते थे. अब इन सारी जो उनके जो जितने भी एफर्ट्स थे उनके कारण क्या बदलाव आया, और हम ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश जो रूल था उसके कारण जो यहाँ की जो वैल्यूज थी, जो सोशल वैल्यूज जो थी, कल्चरल वैल्यूज जो थी, यहाँ के जो टेस्ट थे, मतलब जो पसंद और नापसंद थी, यहाँ पे जो कस्टम्स थे, रिचुअल्स थे, तौर तरीके जो थे, उसमें क्या बदलाव आया आफ्टर द ब्रिटिश रूल. जब एक देश दूसरे देश पर राजनीतिक रूप से हो, पॉलिटिकल तरीके से हो, इकोनॉमिकल तरीके से हो, सोशल तरीके से हो या कल्चरल तरीके से जब चेंजेस लाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को मैंने आपको पहले बताया था, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, colonization कहते हैं. colonization is a process of acquiring the political, economical, social and cultural system of any other country. Okay, तो इसको हम क्या बोलेंगे, colonization कहते हैं. Okay, चलिए, you will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Pasts in the Plural. अभी कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं था कि जो सारा इन्होंने किया है, जो सारे जो चेंजेस लाए हैं वो सब पे जो है इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा. मतलब सारे जो वर्ग हैं, जो जितने भी ग्रुप्स थे या जितने भी लोग थे, अलग अलग जो कस्टम्स वाले थे, अलग अलग जो क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे जो इंडिया में जो है ना, बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं, है ना, बहुत सारे कम्युनिटीज़ के, मल्टी कम्युनिटी. ठीक है, तो सारी कम्युनिटीज़ पे इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, इसीलिए जो है इस बुक का नाम जो है आवर पास्ट रखा है. आवर पास्ट नहीं रखा है, बल्कि आवर पास्ट रखा है, मतलब प्लूरल में उसको लिखा गया है. ठीक है, हाउ डू वी नो. अब जो नया इसका जो हेडिंग है वो है हाउ डू वी नो. हम कैसे जानते हैं, किस तरह से हमें पता चलता है, किस तरह से हम किन्हीं चीज़ों को जानते हैं कि देखो इस चीज़ का जो है बहुत, इसका जो प्रभाव था वो किस तरह से पड़ा है. ठीक है, what sources do historians use in writing about last 250 years of an Indian history. कि हम कैसे जानते हैं कि भारत के जो इतिहास है, इंडियन के जो हिस्ट्री, इंडिया की जो हिस्ट्री है,
हिस्टोरियंस होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, जो हिस्ट्री लिखते हैं, उन्होंने 250 साल के 250 ईयर्स का हिस्ट्री लिखने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज या कौन कौन से उनके पास जो आइडियाज जो उनके पास थे वो कहाँ कहाँ से आया, कौन कौन से रिसोर्सेज से उन्होंने ये सब लिखा है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। पहला है जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो तैयार जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं ना आप, जो प्रशासन होता है, जैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे अगर आप शहर में रहते हैं तो जो म्यूनिसिपैलिटी होता है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट में आते हैं जो डीएम एसडीएम है ना, ये सब क्या है, ये सारे प्रशासनिक लोग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव्स होते हैं। ओके, तो ये जो कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता था कि रिकॉर्ड्स तैयार करता था। One important source is the official records of the British administration. The British believed that the act of writing was important. Every instruction, plan, policies, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. Once this was done, things could be properly studied in and debated. This conviction produced an administrative culture of the memos, notings and the reports. अब क्या करता है कि जो हिस्टोरियंस होती थी, अच्छा अंग्रेजों की एक बहुत खास बात होती थी कि वो रिकॉर्ड कीपिंग उनका बहुत अच्छा होता था। जो क्या करते थे, हर चीज को एक रिकॉर्ड रख देते थे। जैसे हम लोग रखते हैं ना, जब आप लोग इस स्टडी में रिकॉर्ड रखते हैं कि जैसे कि भाई आपके फर्स्ट में कितने मार्क्स थे, सेकंड क्लास में कितने मार्क्स थे, थर्ड क्लास में कितने मार्क्स थे, फोर्थ क्लास में कितने मार्क्स थे, सारी आप रिकॉर्ड रखते हैं। तो जब आप 12th पास कर लेंगे तो आपको बताया जाए कि भाई आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स क्या है। तो वो सारी चीज़ें जो फर्स्ट से इवन की जो नर्सरी से लेके 12th तक के जो आपके जो रिपोर्ट कार्ड्स होंगे, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होंगी, वो रिकॉर्ड कीपिंग होगी अगर आप उनको रखते हैं। तो ये अंग्रेजों ने ये बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई थी, या वो बहुत अच्छा करते थे कि वो हर चीज़ की एक रिकॉर्ड रखते थे। और इससे जो है जो हिस्टोरियंस थे उनको बहुत मदद मिलती थी हिस्ट्री लिखने के लिए, ठीक है ना। जैसे अभी ऊपर टॉपिक क्या है कि हम किस तरह से जानते हैं, ये किस तरह से हमें क्या पता कि हम पहले क्या हुआ था। तो हिस्टोरियन कहाँ से लिखते थे और कहाँ से रिसोर्सेज तैयार करते थे, उनके सोर्स क्या थे, तो उसी के बारे में कह रहा था कि पहला जो सोर्स है वो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिकॉर्ड्स थे वो थे। और जो ब्रिटिशर्स थे वो ये मानते थे कि चीजों को, किसी भी चीज को लिखना बहुत जरूरी होता है। ये बात वाकई में सही भी है कि आप लोग अगर फॉर फ्यूचर में अगर आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो उसमें एक कहावत बहुत अच्छी है कि पहले लिख पीछे दे, काम पड़े कागज से ले, है ना। कि कोई भी चीज जब लेन देन हम करते हैं तो पहले उसको लिख देना चाहिए, और कभी फॉर फ्यूचर में जरूरत पड़े तो कागज से ले लेना चाहिए। क्योंकि हम जो है भूल सकते हैं लेकिन कागज झूठे नहीं होते, कागज नहीं भूलते हैं। तो इसलिए रिकॉर्ड कीपिंग एक बहुत अच्छी हैबिट होती है। मैं तो आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि कोई भी चीज़ होती है, कहीं भी कोई इंसिडेंट होता है, जैसे कोई डायरी राइटिंग होती है, आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो डायरी राइटिंग आप कर सकते हैं, तो उसको आप जरूर कीजिए, ठीक है। ओके, तो उनकी एक बहुत अच्छी खासियत होती थी कि वो जो है इस तरीके के जो रिकॉर्ड कीपिंग थे वो करते थे। ओके, अच्छा, अब जो है उनके लिए जो प्रत्येक इंस्ट्रक्शंस, किनके लिए, अंग्रेजों के लिए जो प्रत्येक इंस्ट्रक्शंस होते थे, उनकी जो स्कीम्स होती थी, उनके जो भी डिसीजंस होते थे, ठीक है, वो जरूरी होता था उनके एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कि उनको लिखना, उनकी रिकॉर्ड कीपिंग करना जरूरी होता है, ठीक है। और उसके वो इसलिए करते थे कि भाई जो पहले अगर जो कुछ लिखा गया, जो कुछ हुआ है, घटित हुआ है, जो कुछ whatever it took place or whatever it happened in a past can be studied in a future, ठीक है, उसको हम फ्यूचर में पढ़ सकते थे, ताकि उन पे डिबेट किया जाए कि भी क्या चीज है, कैसा था, कोई प्रोस एंड कॉन्स उसके बारे में जाना जा सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
The Britishers also felt that the all important documents and letters needed to be carefully preserved so that they set up the record rooms attached. Just hold on below. Okay. The British also felt that the all important documents and letters needed to be carefully preserved, so they set up record rooms attached to all administrative institutions, the village Tehsildar's office, the collectorates, and the commissioner's office, the provincial secretariats, the law courts all had their record rooms. Specialized institutions like the archives and the museums were also established to preserve the important records. अच्छा, ये जो आज सिस्टम है हमारा, जब आप थोड़ा सा बड़े होंगे आपको पता चलेगा कि ये जो तहसील, अभी आपने सुना होगा तहसीलदार होता है, डीएम ऑफिस होता है, एसडीएम ऑफिस होता है, कमिश्नर ऑफिस होता है, वहाँ पे जो है ना प्रत्येक या जो कोर्ट्स होते हैं वहाँ पे जो कई सालों पहले के रिकॉर्ड्स भी होते हैं, कभी कभी तो 100 साल पहले के रिकॉर्ड्स भी उनके रखे रहते हैं, है ना। तो जैसे आप लोग कहाँ पे रहते हैं, है ना, आपके एंसेस्टर के बारे में, जो दादा दादी हैं उनकी कितनी ज़मीन थी, कहाँ पे रहते थे, ठीक है, क्या करते थे, कितने पढ़े लिखे थे, सारे रिकॉर्ड्स आज भी मौजूद होंगे। तो ये रिकॉर्ड कीपिंग जो हैबिट है इंडिया में, ये ब्रिटिश रूल के बाद ही ये ज़्यादा आई है। ठीक है, तो अंग्रेजों को भी ये लगता था कि उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये लेटर्स हैं, उनको संभाल के रखना जरूरी है। तो इसके लिए उन्होंने जितने भी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे, तहसील के ऑफिस थे, कलेक्ट्रेट थे, कमिश्नर के ऑफिस थे, ठीक है, सेक्रेटरीट्स थे, इन सब को जो है रिकॉर्ड रूम के रूप में वो तैयार करते थे। और कुछ बहुत ज्यादा जो महत्वपूर्ण थे उनके लिए वो जो है आर्काइव्स जो होते हैं, जिनको बोलते हैं अभिलेखागार, आपने सुना होगा, आर्काइव्स उनको बोला जाता है। ये मैंने इसको गलत प्रोनाउंस किया था, दैट इज द archives, not archives, that is the archives, ओके, इसको बोलते हैं अभिलेखागार। और जो म्यूजियम्स होता है ना, म्यूजियम्स आपने देखा होगा, तो म्यूजियम्स जैसे उन्होंने जगह बनाई है जहाँ पे उनको बहुत अच्छी तरीके से उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया जा सके, उनको रखा जा सके, उनकी देख रेख की जा सके। Okay, letters and the memos that moved from the one branch of the administration to another in the early years of the 19th century and still be read in the archives. You can also study the notes and the reports that district officials prepared, or the instructions and the directives that were sent by the officials at the top of the provincial administrators. Now, in the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by the calligraphists, that is, by those who specialized in the art of beautiful writing. By the middle of the 19th century, with the spread of the printing, multiple copies of these records were printed as the proceeding of each government department. अच्छा, जो 19th सेंचुरी के जो स्टार्टिंग में जो था, ठीक है, वहाँ पे वो क्या करते कि अब आज भी जो है उनके डॉक्यूमेंट्स को देखा जा सकता है, जो लेटर्स थे उनमें। अभी अगर आप जाएंगे जो म्यूजियम्स में जाएंगे या आर्काइव्स में जाएंगे, वहाँ पे अभी भी जो अंग्रेजों के ज़माने जो ब्रिटिश रूल्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स आज भी रहते हैं, ठीक है। और ये जो नोट्स एंड रिपोर्ट्स होते हैं जो तैयार की जाती हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा, वो आज भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वो भी देख सकते हैं कि एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस देते थे या क्या उनके सजेशंस होते थे, वो आज भी वहां पर मौजूद हैं, ठीक है। और आज भी जो है इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की जो है वो कॉपीज की जाती हैं। वो जो है, अच्छा, उनका जो है ना एक सिस्टम और भी था कि वो जो डॉक्यूमेंट जो कीपिंग जो करते थे, जो लिखते थे, वो कैलीग्राफिक जो होता है ना, एक मतलब जो आर्ट होती है, जो लिखने की आर्ट होती है, उसके लिए अलग ही लोग रहते थे और वो उसको लिखा करते थे, ठीक है, ताकि वो स्पष्ट रूप से आगे भी समझा जा सके। और उसके क्योंकि उससे पहले तो प्रिंटिंग प्रेसेस नहीं थी,
उसके बाद प्रिंटिंग प्रेसेस उन्होंने सेटअप कर दी थी, तो वो जो है उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स जो रहते थे वो सब जो है प्रिंटिंग प्रेसेस में ही तैयार किए जाते थे। ठीक है, तो ये कौन कौन से सोर्सेस थे, ये वो सोर्सेस थे हिस्टोरियंस के लिए जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड कीपिंग के जो सोर्स हुआ करते थे वो सोर्सेस थे। अब है सर्विस बिकम द इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तब तक आप जो है इस टॉपिक को आप बुक कि मैंने लाइन वाइज लाइन पढ़ी है, तो आप इसको एक बार बुक को पढ़ लीजिए, उसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है। ओके, और कीप लर्निंग। Okay, by tomorrow I'll be there with a new recorded video. Okay, till then take care of yourself. Bye bye.